This video is for final year MBBS students, in which I'll talk about how and what to prepare for surgery B prof exam and how to attempt the paper. So final prof में surgery के दो papers होते हैं, surgery A and surgery B. In this video I'll talk all about surgery B prof exam, जिसके total marks हैं 90, out of which 45 marks होंगे MCQs के and 45 marks होंगे short answer questions के. A total number of 12 short answer questions will be given to you, and you will be asked to attempt only 9 questions. And each question will carry 5 marks. So first of all, ये discuss कर लेते हैं कि कौन से topic surgery B में आते हैं. %75 portion surgery B paper में आता है from GIT and only 25% from urology. In 45 MCQs में से 32 MCQs होंगे from GIT and only 13 from urology, which is still not a small number. And 12 short answer questions में से 9 आएंगे from GIT and 3 आएंगे from urology. So a major portion will be from GIT and another portion from urology. GIT के जो topics हैं, they are esophagus, stomach, spleen, liver, pancreas, biliary tree, peritoneum, hernia, small intestine, large intestine, rectum and anal canal, and appendix. Now people ask me about the important topics. So everything, every condition, every disease which is common in your region, in your country, is important, because you should know how to manage those conditions. एसोफेगस एंड स्टमक में से एक क्वेश्चन आएगा. अगर एसोफेगस में से आएगा तो मोस्ट कॉमनली एसोफेजियल कार्सिनोमा और गर्ड पे पूछा जाएगा. एंड स्टमक में से आएगा तो पेप्टिक अल्सर परफोरेशन इज आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मेटाबॉलिक चेंजेस विच अकर इन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है लिवर एंड स्प्लीन. इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आएगा. सो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी. एवरीथिंग विच इज़ कॉमन इन योर रीजन, इन योर एरिया, इन योर कंट्री इज़ क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट एंड इज़ क्लिनिकली रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स एज वेल. सो स्प्लीन और लिवर में से जैसा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स RTAs आर वेरी कॉमन, इसलिए यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन स्प्लीनिक रप्चर एंड ट्रॉमेटिक लिवर रप्चर एज वेल. लिवर में से जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दे आर लिवर सिस्ट, लिवर एब्सेस, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Next is pancreas and biliary tree. इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन अलग आएगा, which highlights the importance of biliary tree, के इसमें से अलग एक क्वेश्चन आएगा. So pancreas में acute pancreatitis is very important. Biliary tree में से cholecystitis is important. Gallstones are important. They are common as well. You can also see कि biliary tree में से 4 MCQs भी आएंगे. पेरिटोनियम में वही जो पेप्टिक अल्सर परफोरेशन का में हो जाती की कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन आती है, पेरिटोनाइटिस. इस तरह पेरिटोनियम में भी पेरिटोनाइटिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 question and 2 MCQs. hernias are very 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 important, 1 question and 4 MCQs. So hernias में incisional hernias, epigastric hernias, inguinal hernias, paraumbilical hernias, they are very important. Next is small intestine and large intestine. इनमें से एक क्वेश्चन आएगा. 3 MCQs from small intestine and 4 MCQs from large intestine. इनमें से कार्सिनोमास पे क्वेश्चन आ सकते हैं. Crohn's disease, ulcerative colitis, intestinal obstruction, which is a very important topic. So इन पे के सिनारियोज आ सकते हैं. Rectum and anal canal में से एक question and 3 MCQs. Rectal carcinoma, rectal polyps, rectal carcinoma, very important. Anal canal में से anal fissures, anal fistula, hemorrhoids, very important. Appendix, a very very important topic. 1 question and 3 MCQs. Acute appendicitis पे भी आ सकता है, carcinoid tumor पे भी आ सकता है question, and abscess पे भी आ सकता है. ये पोर्शन है सारा GIT का. अब नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज़ फ्रॉम यूरोलॉजी. यूरोलॉजी में जो टॉपिक्स हैं, दे आर किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा एंड पीनस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस.
अब इसमें से जो लास्ट 3 टॉपिक्स हैं, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा एंड पीनस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा एंड 9 MCQs आएंगे, 9 MCQs and 1 question from these topics. So prostate में benign prostatic hyperplasia and prostatic carcinoma very important, urethra में urethral injuries very important, scrotum and testes में testicular carcinoma very important. Urinary bladder में bladder stones and bladder carcinoma important है. Kidney and ureter में से renal stones and renal colic and UTIs वगैरह important है. So this is all about the rank order. Now what do they ask in multiple choice question? So हम discuss करेंगे कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं. So they can ask you the most common cause or the most common predisposing factor for a condition. Which one of the following is the most common cause of the condition? Which one of the following is the most common predisposing factor of this condition? So that doesn't really mean कि आप most common cause को याद करेंगे, because the next pattern जो cause पे पूछा जाता है, that is which one of the following is not the cause of a condition. So that means कि आपको पता होना चाहिए कि एक disease और condition के कितने possible causes हैं. So जो next चीज़ पूछी जाती है वो है anatomy. Anatomy 3 reasons के लिए important है. First of all, it will help you to understand the topic, because if you don't know the anatomy, you won't be able to understand the topic. You cannot really understand the surgical steps. Can ask you in multiple choice questions. Multiple choice questions anatomy पे किस तरह से आ सकते हैं? एक तो direct आ सकता है कि structure medial क्या है और lateral क्या है, और blood supply और nerve supply पे पूछा जा सकता है. जो सेकंड पैटर्न है एनाटमी में, जो एनाटमी का क्वेश्चन होता है, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड इन दिस सर्जरी. तीसरी चीज़ जिसमें एनाटमी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फॉर द ऑस्की. इन ऑस्की दे कैन गिव यू अ डायग्राम एंड आस्क यू टू लेबल इट. कैटेगरी है दैट इज़ सर्जरी. सर्जरीज पे MCQs किस तरह के आते हैं? दे कैन गिव यू अ केस सिनेरियो और किसी कार्सिनोमा की स्टेज भी दे सकते हैं. दे कैन आस्क यू कि कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर बेस्ट है फॉर दिस कंडीशन, एंड इसमें स्पेसिफिक सर्जरीज के नाम याद करने पड़ेंगे आपको. सो दिस इज़ अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में जो MCQs आते हैं, दे गिव यू अ केस सिनेरियो, दे कैन गिव यू अ केस सिनेरियो एंड आस्क यू कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप या नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, और दे कैन आस्क यू द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन. और भी आप टॉपिक पढ़ें तो ये देख लें कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन क्या है. दिस 3 आर डिफरेंट थिंग्स. नेक्स्ट जो MCQs आते हैं, दे आर ऑन साइंस. ये कौन से साइंस हैं? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी के साइन, मोबियस साइन, डार्लिंपल साइन, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में ग्रे टर्नर साइन, कोलिन साइन. ये आपको स्टेट कर सकते हैं साइन को, एंड यू विल बी आस्क्ड टू चूज विच साइन इज इट. सो यू शुड नो द नेम ऑफ दैट साइन. कॉम्प्लिकेशंस में दे कैन आस्क यू द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. सर्जरी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस पूछी जाती हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स की. सो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या है और द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है. क्राइटेरिया पे जो MCQs आते हैं, दे आर जस्ट अ फ्यू क्राइटेरिया जो सर्जरी में हैं. यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दैम. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि रैंसन्स क्राइटेरिया दैट इज़ यूज्ड टू असेस द सेवेरिटी ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. So इस पे you can expect MCQs as well, a short answer question as well, and a viva question as well. Next category है carcinoma. And carcinoma ये है, for example rectum से अगर 3 MCQs आ रहे हैं तो you should always expect कि एक MCQ carcinoma पे होगा. और इसी तरह सारे topics में से carcinoma में they can give you a stage of the carcinoma and ask you how will you manage it, and they can give you the treatment. ट्रीटमेंट में सर्जरी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर सर्जिकल ट्रीटमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड इन मेडिसिन के एग्ज़ाम में मेडिकल ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. सो ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है उसी तरह बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है,
incisions में they can ask you which incision is most commonly used for a certain procedure. For example, they can ask you for appendectomy which incision is most commonly used, and that is gridiron incision. So ये कुछ सर्जिकल इंसिजन्स हैं, ये सारी पता होनी चाहिए कि किस प्रोसीजर में कौन सी यूज़ होती है, और अगर उनका कोई स्पेसिफिक नाम है तो वो नाम आपको याद होना चाहिए कि MCQs में आ सकता है कि मोस्ट कॉमनली यूज इंसिजन कौन सी है. नाउ लेट्स डिस्कस की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के 3 पैटर्न्स हो सकते हैं, जिस पे 90% क्वेश्चंस जिस पैटर्न पे आते हैं दे आर केस सिनेरियोज. केस सिनेरियो में दे विल गिव यू अ केस सिनेरियो जिसका आपने डायग्नोसिस करना होगा और फर्दर क्वेश्चंस होंगे. 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा. सो मिनिमम पार्ट्स 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम 5 पार्ट्स हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 to 5 पार्ट्स कॉमन है कि होंगे. तो केस सिनेरियोज पे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं आगे. जो दूसरा पैटर्न आ सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, दे कैन गिव यू द डायग्नोसिस. जैसे वो आपको डायग्नोसिस दे देंगे. फॉर एग्जांपल पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करने के बाद इफ़ दे से कि पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है, दे कैन आस्क यू नाउ एन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस. तो ये सेकंड पैटर्न है. इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. और थर्ड पैटर्न भी यही है कि दे कैन गिव यू द डायग्नोसिस एंड दे कैन आस्क यू द डिटेल्स अबाउट दैट टॉपिक. जैसे कि आ जाएगा कोई भी चीज़ दे दी, कोई डायग्नोसिस, जैसे डायग्नोसिस वो खुद दे देंगे, और दे कैन आस्क यू एन्यूमरेट. सो ज़्यादातर क्वेश्चंस इस पैटर्न पे आएंगे. केस सिनेरियोज किस तरह के होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन केस सिनेरियो में जो होता है दैट इज़ व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस. डायग्नोसिस को करने के लिए आपको यू शुड नो अबाउट दैट डिजीज़, एज, जेंडर, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम एंड लैब वैल्यूज़ को देख के डायग्नोसिस किया जा सकता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज़ द डिफरेंशियल्स ऑफ. डिफरेंशियल्स को लिखने से पहले हमेशा देखें कि पेशेंट की एज क्या है, बिकॉज डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसकी एज के लिहाज से, एज एंड जेंडर दोनों के लिहाज से लिखे जाते हैं. सो देख लें कि उस पेशेंट की एज क्या है और फिर डिफरेंशियल्स लिखें. इन्वेस्टिगेशंस लिखने का ये तरीका है कि सबसे पहले सिंपल एंड नॉन इन्वेसिव से शुरू करें और फिर इन्वेसिव की तरफ जाएं एंड कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएं. उसमें से जो स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव ज़्यादा है उसको हाईलाइट कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट ट्रीटमेंट. इसमें आप हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे. और ट्रीटमेंट लिखने का ये तरीका है कि आप उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट. कार्सिनोमास के केस में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट. इस तरह की हेडिंग्स के अंदर आप फर्दर ट्रीटमेंट लिखेंगे. नाउ द कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस को लिखने का ये तरीका है कि आप इमीडिएट, लेट कॉम्प्लिकेशन भी कर सकते हैं, और इंट्रा ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस. अगर किसी ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस पूछी गई हैं तो इस तरह लिखनी है. अगर किसी कंडीशन की पूछी हुई है तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस और लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और आइट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या